السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یار. میں نا 2016 میں پہلی بار آیا تھا یہاں پہ دبئی میں. یہاں پہ جن کے پاس آیا تھا انہوں نے پیسے وغیرہ کھا لی, ویزا وغیرہ نہیں دیا, واپس چلا گیا. پھر 2018 میں آیا, پھر نہیں اللہ نے سنی, پھر واپس چلا گیا. پھر میرے ایک کلاس فیلو ہے سید خاور باز, اس کو میں نے بولا یار, میں نے کہا 2019 میں بولا کہ یار ویزا ملتا ہے کہیں سے تو مجھے ڈھونڈ دے. اس نے کہیں سے نا, کوئی پاکستانی تھا, اس کی کمپنی تھی ٹیکنیکل کی, اس نے اس سے ویزا لے کے دیا. میں نے پیسے دیے, میں نے کہا جب ویزا آئے گا اس کے بعد باقی جو بچیں گے وہ دے دیں گے. 6 مہینے میرے کو یہ گزر گئے. الحمدللہ میں پاکستان میں اچھی جگہ پہ کام کر رہا تھا, لیکن وہاں سے میں نے اس لیے چھوڑا کہ میں ابھی جا رہا ہوں. 3 مہینے پہلے میں نے کام چھوڑ دیا, حالانکہ ویزا نہیں آیا, کیونکہ بندے کو ہوتی ہے نا, آج آئے گا کل آئے گا, چل اسی چکر میں نہ بندہ کام کر سکتا نا. خیر 6 مہینے کے بعد کرا کے اس بندے نے ویزا دے ہی دیا. آخر کار پہنچے یہاں پہ, تو جو وہاں پہ کام کرتے تھے وہ تو اے سی میں بیٹھے. یہاں پہ آئے جناب, 2 دن رکھا. تیسرے دن JVC5 آپ نے سب نے دیکھا ہوگا جو دبئی میں رہتے ہیں, اس میں اسکف فولڈنگ کا کام تقریباً 65 فلور کے اوپر اس نے کھڑا کیا. بولتا ہے اس کو نیچے اتارو. بڑا مشکل. میرے آپریشن ہوا ہے یہاں پہ, میرے سے تو تقریباً کچھ 4 کے وہ اسکف فولڈنگ کے میں نے وہ اتارے. میں نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہوگا یہ کام, کیونکہ کیا نہیں, میں نے اتنی کوئی ہارڈ ورکنگ پاکستان میں کیا نہیں. اس کو بولا بھائی میں نہیں کرے گا. میرے کو اس نے بڑی باتیں سنائی کہ تو یہ ہے تو وہ ہے, تو اس کو کام نہیں کرنا تھا تو کیوں آیا. میں نے بولا کام کرنا بھائی, یہ ڈنگروں والا کام نہیں کرنا. تم لوگوں کو تو پیسے مل رہے ہیں ڈبل کے ڈبل, ہم ڈنگر بن جائیں تمہارے لیے. میں نے نہیں کیا. پھر ایک جہاں پہ اس کا تعلق تھا پلمبر کا کام, میں نے کہا وہاں پہ بھیج دو, شاید وہاں پہ میں کر لوں کچھ. کرا کے اس نے بھیجا ادھر. ان کے پاس گیا, کام کیا. کام تو میں کرتا رہا, لیکن پیسوں کا نام جب آتا تھا تو یہ اتنے کو غلیظ انسان ہیں, ان کے چیک نہیں آتے ہیں. اللہ ان کو شاید آخرت میں کوئی معافی وغیرہ دے دے, لیکن جو ان لوگوں نے غریب لوگوں کے ساتھ کیا نا, مجھے نہیں لگتا. ویزے کے پیسے بھی لیتے ہیں, پھر بندے کو ذلیل بھی کرتے ہیں. تو استغفر اللہ. کیا میں نے مشکلات سے کام کرتا رہا, ویزا جناب نے نہیں لگایا. 1.5 سال ایسے ہی میرا گزر گیا ویزے کے بنا. آج لگاتا ہوں, کل لگاتا ہوں, پرسوں لگاتا ہوں, یہ وہ فلان, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. آخر کل فائن آیا. اب میں بولوں میرا ویزا 1.5 سال ہو گیا یار, تو نے نہیں لگایا, پیسے بھی تو نہیں دے رہا, کیا کرنا کیا مجھے یہ بتا دیں. اللہ کیا تو 1.5 سال کے بعد شاید اس کو غیرت آئی, اس نے کوئی ویزا شیزا کا کیا, بندہ اس ویزا لگ گیا. لیکن 1.5 سال میں نے درہم نہیں دیکھا. جب ویزا لگا تو بولتا یہ یہاں پہ کام کرو, یہ. میں نے بولا میری سن بات, میں کام نہیں کروں گا ابھی تمہارے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے ملنے نہیں ہیں, تم نے کام مجھے ایسے کر, مجھے فری کر دیں, میرا جدھر دل کرے گا میں کام کروں. میری بس ہوگی, کیونکہ تمہارے چیک ہی نہیں آتے. آخر کار ایک کمپنی پاکستانی سیالکوٹ کے وہ بندے تھے, آفس ان کو کہتے ہیں, میرے ابھی نام نہیں یاد, بڑا نائس بندہ. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یار میں یہ کام جانتا ہوں پلمبر کا, تو اگر آپ کے پاس کوئی جگہ ہے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے بولا یہ آ جاؤ, 80 درہم 80 درہم آپ کو دیہڑی دیں گے. تو آؤ, مشکل نہیں. میں گیا ان کے پاس, جس کے پاس پہلے تھا اس سے, وہ تو پیسے دیتا نہیں تھا, اللہ ان کو بھی ہدایت دے.
तो उनके पास गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने जितनी देर तक काम मैंने किया है उसने पैसे दिए। वहाँ से मैंने फिर बाइक का लाइसेंस लिया। मुझे साल लग गया बाइक का लाइसेंस लेते लेते। मैंने यहाँ पे मिस्त्रियों के पीछे भी काम किया है, मैसन जिसको बोलते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद लाइसेंस इकट्ठे पैसे कर करा के लाइसेंस लिया, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद काम लग गया अलमाया मार्केट में। 1 साल मैंने किया काम, वहाँ पे काम किया। वो भी कोई बगैरत था। 3-4 महीने तो उसने सैलरी अच्छी दी, देता रहा टाइम पे। बाद में उसके भी चेक फंस गए। पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानियों के चेक फंस देते। मैंने उससे भी हाथ जोड़ के पासपोर्ट लिया। मैंने कहा भाई मुझे पासपोर्ट दे और मुझे जितने मेरे पैसे बनते वो दे, मैं जाऊँ। वहाँ से छोड़ा उसने, मेरा वीज़ा एक्सपायर करवा दिया, वीज़ा भी नहीं लगाया। फिर इधर भटक उधर भटक 7 महीने इन पाकिस्तानियों की वजह से 2 बार मैं दलील हुआ, एक बार 1.5 साल, एक बार 7 महीने। आखिरकार एक कंपनी पाकिस्तानी थी, इसमें एक इंडियन पार्टनर था, उनके पास गया, अल्लाह किया तो वीज़ा लग गया। फिर काम पे चढ़ गए। उसके अंदर मैंने 4 साल 4.5 साल काम किया करीम के अंदर। जब हालात सेट हुए तो मैंने सोचा चले अब घर चलते हैं, छुट्टी जाते हैं। बड़ा अरसा हो गया, 4.5 साल 5 साल हो गए। छुट्टी जाने के पहले 1 हफ्ते मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी यहाँ पे राड है, पता नहीं मैंने कहा अल्लाह को क्या मंजूर है, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल। अब इतने सालों के बाद जा रहा हूँ तो अल्लाह ने ये इम्तिहान में डाल दिया। बड़ा मुश्किल, टांग टूट गई। जिनके पास काम करता था उन्होंने इतनी गंदी इंश्योरेंस कराई कि किसी हॉस्पिटल में नहीं चलना। मैं उस रात इतनी तकलीफ में था ना कि मैंने 5 हॉस्पिटलों के चक्कर काटे गाड़ी में। पहली तो मुझे एम्बुलेंस ले गई, लेकिन उसके बाद 5 चक्कर आखिरकार राशिदिया हॉस्पिटल में उन्होंने लेके गए। मेरा दोस्त एक, वहाँ पे मुझे एडमिट किया। अल्लाह किया तो मेरी उधर सारा इलाज वगैरह हुआ। मुझे नहीं पता पैसे उनको कहाँ से कैसे मिले कैसे नहीं मिले। 22 दिन मेरा बड़ा मुश्किल हॉस्पिटल में। 22 दिन के बाद मेरी थोड़ी सी टांग मूव होना शुरू हो गई थी ऑपरेशन के बाद। तो मैंने सोचा यार, मैंने उनको बोलूँ मेरे डिस्चार्ज करो, मैं जाऊँ घर, इधर कौन ख्याल रखेगा। मैंने उनको बोला मुझे डिस्चार्ज करो, मैं जाऊँ। बोले टांग मूव करती है। मैंने कर करा के टांग मूव जैसे कर करा के की। मैंने कहा भाई करती है, मुझे छुट्टी दो, मैंने जाना है, मेरे को जाना है। क्योंकि दिल आवाज़ार हो गया था। 5 साल रहा, बहुत अच्छा होता है यार। गया पाकिस्तान में 4 महीने आराम है। वहाँ पे भी फिर वही लड़ाई झगड़े मसले मसाइल, शादी के, बच्चे नहीं है, वो फलां। घर वालों की मेरी बेगम से बनी नहीं 9 साल में। आखिरकार मैं वापस आ गया। मैंने कहा चल यार चलते हैं, यहाँ पे लड़े झगड़े इससे बेहतर वहीं पे। मैं अब चल भी नहीं सकता था तब सही तरीके से। मैं वापस आ गया टिकट करवा के पाकिस्तान से। उसके बाद 1 महीने के बाद अल्लाह ने बड़ी प्यारी मेरी बहन, सबसे अच्छी, इम्तिहान। फिर अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। उसकी बेटी पैदा हुई डिलीवरी के टाइम। अल्लाह ने, जो अल्लाह की मर्जी। मैं गया पाकिस्तान, फिर छुट्टी इमरजेंसी। 1 महीने के बाद फिर सिस्टर की डेथ हो गई। मैंने अल्लाह से ये चीज़ चाहिए कि अल्लाह कितने के इम्तिहान एक बंदे से तुलेगा। तब मेरी वाइफ से कुछ बात पे नहीं बनी, मेरी लड़ाई हुई, मैं वापस आया। मैंने उसके साथ 6 महीने तक बात नहीं की। फिर इम्तिहान हो गई, अपने मायके आई नहीं वापस। मेरे अब्बू गए 2 बार, मेरे चाचू के बेटे 2 बार गए। उन्होंने बोला वापस आने के लिए, नहीं आई। बोलते जब वो आएगा तब देखें। आखिरकार अब्बू डेली फ़ोन करते जाए, यार एक बार घर आ घर आ घर आ। मैं कहा यार आप तंग कर रहे हो, अगर नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मुझे है बताओ। ना कोई बात है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, एम ही फ्री लड़ाई बनाई।
गया पाकिस्तान, उन्होंने बोला भाई वो नहीं आएगी, आप डिवोर्स ले। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे, अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए, मसला कोई, अगर वो मर्जी से गई है ठीक है। मैंने एक नोटिस भेजा था उसके अंदर, जाली नोटिस तलाक का, कि शायद डर जाए वापस आ जाइए, लेकिन उसने, उनके कुछ बड़े अजीज, उन्होंने कहते जब घर खराब करते ना तो तीसरा बंदा करता, कर दिया उन्होंने घर खराब। मैं उनकी चीज़ें जो थी उनको दे के वापस आया यहाँ पे। 3-4 महीने मुझे लगे इधर। मैंने लाइसेंस मैंने गाड़ी का अभी लिया 2 साल पहले, तो मैंने कहा यार जॉब चेंज करते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, बाइक पर बड़ा हो गया। तो उसी दौरान मैसेज आया पाकिस्तान से कि तेरी डिवोर्स के नोटिस आए। मैंने कहा ठीक है, होगी जो होना था, पहले ही वो सामान वगैरह अपना ले गए, अभी नोटिस भेज दिया तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, उस बीच में मैंने एक निकाह किया पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान गया था मैंने क्लियर करने के लिए तलाक का अपना, मैंने एक निकाह किया। छोटी लड़की थी मेरी एज से कम, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कॉलेज की फ़ीस हर चीज़ मैंने दी। मैंने कहा पढ़, अल्लाह बेहतर करेगा, शायद फ्यूचर में कोई काम दे जाए। मैंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश अच्छी की, लेकिन उसने कुछ ऐसी हरकत की कि मुझे ना वो बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैंने कहा मेरे हाथ जुड़े, 9 साल की पहले ज़िंदगी मैंने ख़राब की, दोबारा मैंने नहीं करना। जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो बार बार बोले नहीं लड़की अच्छी है। मैंने कहा जब अच्छी होगी तब मैं कर लूँगा, अभी मुझे नहीं लग रहा ये अच्छी है। आखिरकार उनको अपनी आंखों से देखना पड़ा, तो फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी, बोलते आप तलाक दे देता हूँ। शरई निकाह किया था मैंने 2 बार, दूसरी तलाक मैंने खुद दी उस बंदी को। अब यहाँ पे मैंने कहा पाकिस्तान तो जाना नहीं, यहाँ पे एक बंदी है, अल्लाह ने, कहते हैं ना जब किसी को भेजना हो तो ऐसे भेज देता है, भेज दिया उसको। अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो भी चाहती है मेरे साथ रहना, ज़िंदगी गुजारना। मैं भी चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन एक मसला फिर आ जाता है, वो अपने माजी को याद करती है ना तो मुझे तकलीफ होती है। मैंने उसको कितनी बार बोला कि अपना माजी मेरे सामने ना बयान किया कर। ठीक है मुझे पता है तेरा माजी क्या है क्या नहीं, क्या किया है तेरे पीछे जो पहले ज़िंदगी में आया, मेरे साथ डिस्कस नहीं किया कर। लेकिन पता नहीं उसको क्या मसला है, मेरे साथ हर बार जब भी मेरे साथ आती है, आज भी आई थी मेरे साथ, तो वही बातें करती है, मुझे फील नहीं करवाती कि मैं तेरे लिए फीलिंग है कुछ, लेकिन मेरे साथ आती है, खुश होती है, रहती है। बस दुआ यही है कि ये आखिरी इंसान है मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह इसको मेरी ज़िंदगी में लाए, खुशी हंसी खुशी सब, और अल्लाह अगली ज़िंदगी बेहतर करे। जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बेहतर करे, उनके सदके मेरी ज़िंदगी में बेहतर करे। मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे बड़ा शौक़ है मेरी अपनी औलाद हो। 9 साल पहले शादी रही, नहीं हुई। अब दुआ करता हूँ इसके साथ अल्लाह को फ्यूचर में अच्छी प्लानिंग करे। अल्लाह जो भी करने वाला अल्लाह करने वाला है। दुआ मांगता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह के आगे झुकता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ, गुनाहगार इंसान हूँ, तो अल्लाह करने वाला है। शायद मैंने कहा मेरी तकदीर में अगर नहीं भी है तो लिख, अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर कर, तेरे आगे झुक रहा हूँ, तुझसे मांगना हूँ, तेरे अलावा है कोई नहीं, तो उसके अलावा है भी कोई नहीं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। बड़ी मुश्किलें देखी हैं मैंने, अब ना थक गया हूँ। 31 साल मेरी उम्र है, मेरे बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी सफ़ेद है इस उम्र में। हालांकि ये कोई उम्र नहीं है, लेकिन टेंशनें इतनी ज़िंदगी में आई ना कि उन टेंशनों ने ना ज़िंदगी से पहले बुरा कर दिया है, उम्र से पहले बुरा कर दिया ज़िंदगी में। अल्लाह बेहतर करे। दुआ करता हूँ जिनकी मुश्किलात है अल्लाह उनकी हल करे, उनके सदके मेरी हल करे, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद दे, उनके सदके मुझे भी दे। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी
بہت شکریہ، اگر نہیں تو بھی شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اللہ خیر کرے. خدا حافظ جی. السلام علیکم.